Physics chapter number 12, electricity. So to understand electricity, first we have to understand what is the meaning of current. So current का मतलब होता है, simple meaning of current is flow. Flow of what? Flow of water, flow of wind. Flow of water is called water current. Flow of wind is called wind current. But when you ask me what is electric current, I will tell you flow of electrons is electric current. Flow of electrons. ठीक है, तो current का मतलब flow होता है. Simple meaning of current is flow. ठीक है. Now let's take one example. Let's take the example of a torch. Right? अब आप सबको पता है कि टॉर्च के अंदर बैटरीज होती है जिसको आप सेल कहते हैं. ये सेल टॉर्च को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करती है और जब हम उसके स्विच को ऑन करते हैं, टॉर्च के स्विच को ऑन करते हैं, द बल्ब ग्लोज. तो स्विच क्या करता है? स्विच एक कंडक्टिंग लिंक है, एक लिंक बनाता है बिटवीन द बैटरी एंड द बल्ब. जैसे ही स्विच ऑन होता है, then the current from the battery will flow towards the bulb and that's why the bulb will glow. कोई भी फैन ऑफ है, वो क्यों ऑफ है? क्योंकि स्विच ऑफ है. स्विच ऑफ है इसका मतलब कि एट प्रेजेंट करंट उस फैन तक नहीं पहुंचा. दैट्स वी कॉल स्विच इज ऑफ. सो स्विच इज ऑफ. स्विच को हम इस चैप्टर में की कहेंगे, की. So whenever the key is broken, whenever the key is off, then we will say that the circuit is broken. I'll just show you one figure over here. This is a battery. This is a battery. Here is a key. Symbol of key. Key means switch. Here is a bulb. Bulb ऐसे बनाते हैं. This is the bulb. So this is a very simple electric circuit. अब आप चेक करो, जैसे ही बैटरी में से करंट फ्लो होगा, the current will go to bulb and then it will come back to the battery if the switch is on. देखो अब ये जो दो ब्रैकेट्स बना है ना, ये की है. की मतलब स्विच. अगर स्विच के बीच में मैं डॉट लगा दूं, बटन ऑन, इट मीन्स द स्विच इज ऑन. The key is on. ठीक है. It means the circuit is closed. Circuit is closed मतलब अब ये करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है. बट अगर मैं डॉट हटा दूं, so now the switch is off and the circuit is broken. इसको बोलते हैं circuit is broken. Circuit is broken means the current is not flowing. So current flow नहीं हो सकता and the bulb will not glow. Any questions? चलिए, please come back to the textbooks everyone. Page 199, please open. We are familiar with air current and water current. We know that flowing water constitutes water current in river. Similarly, if the electric charge flows through the conductor. कंडक्टर का मतलब कोई भी ऐसा डिवाइस, कोई भी ऐसी वायर जिसमें करंट फ्लो हो सके. राइट? Similarly, if the electric charge flows through the conductor, we say that there is electric current in the conductor. In a torch, we know that the cells provide flow of charges or electric current through the torch bulb to glow. We also have seen that the torch gives light only when the switch is on. अब क्वेश्चन है, what does a switch do? Switch क्या करता है? What does a switch do? So let's underline. A switch makes a conducting link. A switch makes a conducting link between the cell and the circuit. I'm so sorry, bulb. I read the next line. A switch makes a conducting link between the cell and the bulb. Cell और bulb के बीच में conducting link provide करता है. कौन? Switch. So one more question, what is the function of switch? It makes a conducting link between the cell and the bulb. Also underline, a continuous and closed path of electric current is called electric circuit. Define electric circuit. A continuous and closed path of
अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर ये सर्किट ब्रोकन होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा एंड द बल्ब विल नॉट ग्लो, राइट। नेक्स्ट लेट्स कम टू द टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो स्टूडेंट्स इमेजिन करो एक सर्किट है, जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर सर्किट बनाया है, इस सर्किट में चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, मान लो इसमें 10 कूलम चार्ज फ्लो। आई होप लोअर क्लास में आपने पढ़ा था कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। सो मान लीजिए इस सर्किट में 10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहे हैं, कितने सेकंड्स में, सपोज करो 1 सेकंड। In 1 second 10 coulomb charge is flow. So 10 upon 1. So 10 coulomb per second. ये इस सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट है। So define electric current. It is the amount of charge. It is the amount of charge flowing through a particular conductor, flowing through a particular circuit in unit time. Unit time मतलब 1 second. Unit time हमेशा 1 second. 1 सेकेंड में किसी भी सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो उसका इलेक्ट्रिक करंट है। अगर 10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में तो 10 इज द इलेक्ट्रिक करंट। अगर 20 कूलम फ्लो हो रहा है तो 20 इज द इलेक्ट्रिक। सो कूलम पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक। और कूलम पर सेकेंड को हम लोग जूल भी लिख सकते हैं, सॉरी एम्पियर भी लिख सकते हैं। Coulomb per second is also known as ampere. So ampere is a standard unit of electric current. Ampere is a standard unit of electric current. Q ampere, to give honor to the great scientist Henry Mary Ampere, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की, उनके नाम पे ये एम्पियर है। सो इलेक्ट्रिक करंट की 2 यूनिट्स है, पहला कूलम पर सेकंड, दूसरा एम्पियर। हम सम्स में क्या यूज करेंगे, कंफर्म। लेट्स पे अटेंशन। नेक्स्ट पैराग्राफ, हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट। अंडरलाइन, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। आई रिपीट, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, राइट। चलो, सो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है इन यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। पीछे इसकी फॉर्मूला दी हुई है, प्लीज सर्च। आई मींस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करने का फॉर्मूला Q अपॉन T। Q स्टैंड्स फॉर चार्ज, Q स्टैंड्स फॉर चार्ज एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। सो I इक्वल टू Q अपॉन T, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। सो ये फॉर्मूला बहुत काम आएगी, प्लीज इसको याद कर लेना। I इक्वल टू Q अपॉन T। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अंडरस्टैंड। इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन्स बहुत लेट डिस्कवर हुए थे। पहले क्या डिस्कवर हुए थे, प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए, उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई। Listen very carefully. इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए, उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई। और तब लोगों को ऐसा लगता था इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स। People used to think electricity is flow of protons are with charge, positive charge. तो उन लोगों को ऐसा लगता था that electricity मतलब flow of protons, और प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है, मतलब प्रोटॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होंगे टू नेगेटिव टर्मिनल। मतलब पहले ऐसा लगता था प्रोटॉन्स विल फ्लो, प्रोटॉन्स इज द प्रोटॉन्स का जो फ्लो है दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का जो डायरेक्शन है इट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पहले की बात। पहले लोगों को ऐसा लगता था दैट इलेक्ट्रिसिटी मींस फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए और बाद में ये रियलाइज हुआ दैट एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन उसके बाद भी आज तक हम लोग वो कन्वेंशनल बिलीफ ही फॉलो करते हैं। कन्वेंशनल मतलब वो पुरानी वाली बिलीफ विदाउट लॉजिक।
आज भी कोई हमसे पूछता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हमें क्या बोलेगा? इसको बोलते हैं कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट। टिल टुडे हम लोग कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट ही फॉलो करें। कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम, और करंट अगर कोई पूछे इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होता है नेगेटिव। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डायरेक्शन ऑफ करंट बोथ आर अपोजिट। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। प्लीज कीप दिस इन माइंड। आई एम रीडिंग इट फॉर यू, प्लीज पे अटेंशन। पेज 198। In circuits using metallic wires, electrons constitute the flow of charges. However, electrons were not known at the time when the phenomenon of electricity was first observed. So electric current was considered to be the flow of positive charges, and the direction of flow of positive charges was taken to be the direction of electric current. Conventionally, in an electric circuit, the direction of electric current is opposite to the direction of flow of electrons. Electrons के flow का direction, electrons के flow का direction और electric current का direction, both are opposite. अब जो next page है page 200, उसमें आपने फॉर्मूला नोट कर लिया I equal to Q upon T. अब नीचे देखिए क्या लिखा है, the SI unit of electric charge is coulomb. मिला? Yes. And see one or two lines below, the electric current is expressed by a unit. What is the unit called? Ampere. अब ये नाम एम्पियर क्यों रखा? Please search. After the French scientist Henri Marie Ampere. Okay, please come to the board. What is the formula of electric current? I equal to Q. अब मान लो किसी भी सर्किट में, suppose in any circuit, 1 coulomb charge is flowing. How much charge? 1 coulomb. Suppose in any circuit 1 coulomb charge is flowing. In how much seconds? 1 second. 1 second. So what is 1 upon 1? 1. तो उस इलेक्ट्रिक करंट को बोलेंगे 1 एम्पियर। अगर कोई हमसे पूछे डिफाइन 1 एम्पियर, क्या क्वेश्चन आ सकता है? डिफाइन 1 एम्पियर। तो क्या लिखने का, सुन ध्यान से। If 1 coulomb charge flows through the circuit in 1 second. If 1 coulomb charge flows through the circuit in 1 second, then the current is called 1 ampere. If 1 coulomb charge flows through the circuit in 1 second, then the current is called 1 ampere. ये 1 ampere का definition. Please search in the textbook. Define 1 ampere. 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second. Got it everybody? अच्छा सर, करंट की यूनिट एम्पियर तो होती है, राइट एवरीवन? बट अदर देन एम्पियर, एम्पियर इज अ बिगर यूनिट। स्मॉलर यूनिट्स है मिली एम्पियर, प्लीज सी एमए, एमए स्टैंड्स फॉर मिली एम्पियर, और दूसरा है माइक्रो एम्पियर। सो मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर, they are the small units, they are the small units of current. Milliampere, microampere, and ampere is a bigger unit of current. हमेशा सम्स में क्या यूज करने का? अगर मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर है, सपोज करो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 मिली, तो आपको मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर देगा। मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10 raised to -3, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 raised to -3 एम्पियर। और अगर मान लो 5 माइक्रो एम्पियर लिखा हुआ है सम्स में, तो आपको लिखने का 5 into 10 raised to -6। प्लीज सर्च बेटा इन द टेक्स्ट बुक। कुड यू फाइंड 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 raised to -3 एम्पियर? यस सर। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 raised to -6 एम्पियर। ओके, अब स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक का जो फिगर है 12.1, प्लीज सी देयर, उसमें जो सर्किट बनाया हुआ है उसमें सर्कल के अंदर ए लिखा हुआ है। डिड यू सी दैट? तो इस ए का मतलब होता है एमीटर। आई एम जस्ट शोइंग इट हियर, प्लीज सी, दिस इज एमीटर। एमीटर एक डिवाइस है
इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के डिवाइस को क्या बोलते हैं? जैसे हमारी गाड़ी में, हमारे व्हीकल्स में स्पीडोमीटर होता है, वो बताता है ना स्पीड कितनी है। इसी तरह एमीटर एक ऐसा डिवाइस है, उसमें भी नंबर्स होते हैं। सपोज उसका पॉइंटर 4 पे आए, इसका मतलब सर्किट में 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अगर 3 पे आए तो 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, एंड सो इट इज अ डिवाइस दैट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। दैट्स ओके एवरीबॉडी? चलो, so till this I hope everything is clear. Now let's come to some numericals. Okay, now see students, there is an example 12.1 given to you. Let's complete that. Example 12.1. Look at the question everyone. A current of 0.5 ampere. Now I'm not reading further. Please tell me 0.5 क्या है? Current. करंट का सिंबल क्या है? I. So I is given 0.5. Any doubts? Let's read further. A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for how much minutes? 10 minutes. So what is 10 minutes? Time. मिनट्स का स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड्स होता है, तो इस मिनट्स को हम लोग सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 minute has got 60 seconds. 60 into 10 600 seconds. Let's read further. Find the amount of electric charge that flows to the circuit. हमें ये फाइंड आउट करना है कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है। So what is the formula of I? क्या रीड किया हमने ऊपर? I equal to Q upon I और T की वैल्यू है ना सर? Q is missing, so cross multiply. Q equal to I into T. I is 0.5. Time is 600. Remove the point. So 10 cancel. What is 60 into 5? 300. So 300. और हमने क्या सर्च किया, क्या फाइंड किया? Q मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। सो फाइनल आंसर इज 300 कूलम्स। वेरी इजी। फॉर्मूला पता हो, किसका सिंबल क्या है, किसकी यूनिट क्या है। एग्जांपल्स आर गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। लेट्स रीड फर्दर। कम टू द इंडेक्स बॉक्स बिट। व्हाट डज इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? तो सर मैंने आपको प्रीवियस पेज पे यहाँ अंडरलाइन करवाया था। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब, प्लीज सी दिस लाइन, अ कंटिन्यूअस and closed path of electric current is called electric circuit. मिला सर? Yes sir. Thank you sir. Come to the next question. Define the unit of current. करंट की यूनिट को हमें डिफाइन करना है, मतलब 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। सो 1 एम्पियर का डेफिनेशन यहाँ मैंने आपको ऊपर अंडरलाइन करवाया। 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकंड। गॉट इट सर? थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मुझे पता करना है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं सपोज करता हूं इन 1 कूलम चार्ज देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स। ओके, let us assume, let us suppose that in 1 coulomb charge there are n electrons. So let n be number of electrons. Now in standard 9 you have studied that एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. I don't know whether you remember or not, but एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है 1.6 into 10 raised to minus 9. ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है बिकॉज ऐसा ऑथर मान के चल रहे हैं कि आपको 9 आता है। So 1 electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Okay. अब चार्ज Q निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे N into E. Q means चार्ज। कितना चार्ज? जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हमने सपोज किया N। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? So Q equal to N into E. सबकी वैल्यूज पुट करो। Q means coulomb. How much coulomb? 1 coulomb.
n means number of electrons फाइंड करना है, e means चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, कंफर्म, ये अपॉन में आ जाएगा, सो n इक्वल टू 1/1.6 into 10 raised to minus 9. Till here steps clear? In standard 8th आपने सीखा था 10 raised to minus 19 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 raised to plus 19 हो जाएगा, सुना है ये? और यहां से पॉइंट रिमूव कर दो तो इसका जो अपॉन 10 है वो ऊपर चला जाएगा, 2 5 2 8 टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर? अब इसको हम डिवाइड करेंगे, लेट्स डिवाइड 5 डिवाइड बाय 8 की टेबल में 5 नहीं आता, पुट अ 0 here, 8 6 8 2 16, 8 5 so how much I get? 0.625 into 10 raised to 90 electrons, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं इन वन कॉलम चार्ज। और फिजिक्स का एक और बता दें, पॉइंट के आगे जो नंबर है ना वो 0 है। फिजिक्स में ये ट्राई करने का कि पॉइंट के आगे का नंबर हमेशा 1 से लेकर 9 तक का कोई नंबर, फ्रॉम 1 to 9। अब एक काम करो, यहां तक अगर लिख के आओगे ना एग्जाम में फुल में से फुल मिल जाए, 2 में से, बट एक स्टेप और करवा रहा हूं, पॉइंट अभी कहां है? 0 और 6 के बीच में, इसको एक डिजिट मूव करो इस तरफ, किस तरफ? राइट और लेफ्ट? राइट। अपने राइट साइड एक डिजिट मूव करो पॉइंट को, तो क्या हो जाएगा? 6.25। किस साइड आपने मूव किया? राइट। व्हेनेवर यू मूव द पॉइंट टुवर्ड्स राइट, कितने डिजिट्स मूव किया? 1, तो उतना माइनस होगा पावर। आपने एक डिजिट मूव किया तो पावर 1 माइनस होगा, 2 डिजिट मूव किया तो पावर 2 माइनस, तो यहां से 1 माइनस करो, so this is total number of electrons in one coulomb charge, right sir? Check. Next हम अभी सीखेंगे potential difference afterwards, right? Till then you just go through these topics and next video will be on potential difference.